Hello, my dear Instagram family. If self empowerment is a topic that interests you, today's live is for you. So, who do I have today? Today, the guest that I have has immense. Hello, Tushar. Thank you for joining in. Today, the guest that I have with me has immense, experience in his field, and I'm super thrilled to have Suresh Kumar with us today. He is an Indian Air Force veteran and an expert trainer with 17 plus years of experience, and he has the experience in behavioral skills, NLP, and personal transformation. Having worked with 100 plus top organizations, he is on a mission to build high performance teams and helps individuals break through personal barriers. Are you all ready to have him here? Hello, Sophia. Thank you for joining in. So let's put in lots and lots of hearts before so Suresh sir joins us, and let me meanwhile invite. And in case you guys have any questions, feel free to ask. While I have invited Suresh, uh, my chat has gone somewhere. But yes, we have him with us. Suresh, can you, turn around your camera so that we can see you? Just yes. Hello. Is it okay now? Hi, thank you so much, Suresh, for joining in. And it is an immense pleasure. The kind of experience that you hold in this industry is truly phenomenal. And I was just, introducing a small bit about you to the audience. Would you like to, share about yourself in your own way, please? Please, you give a small introduction, then I will maybe add something more. Acha, I have already given before you joined in. Oh, Um, yeah. thank you. So, uh, what I have told the audience about you is that you are an Indian Air Force veteran and an expert trainer with 17 plus years of experience in behavioral skills, NLP, and personal transformation. And you have been working with 100 plus top organizations. You are on a mission to build high performing teams, and you help individuals break through personal barriers. This is what I have introduced as you as. If you have anything else to share on this platform, please feel free to share about it, about your own self. Oh, thank you for you have already given a very great introduction of mine. And to add something more to that, I am a certified handwriting analyst also. So it's a more of my hobby. I never use as a professional basis. So handwriting, I find it's a biggest tool to analyze anyone, including yourself. Absolutely. And I started my career when I was in the last phase in Air Force. I did a presentation in the Air Force School and how to study smartly. That program became so hit. So that gave me the confidence. Yes, I have this thing. And Wow. initially, I started with a student because I have never gone to the college because in 1987, I joined Air Force after completion of my 12th. Oh, Then wow. I had never got a chance to, go to the college. Wow. That's amazing. We all Yes, have very big limiting belief कि हम पढ़ाई नहीं करते तो हम कुछ नहीं बन सकते, but you have proved it wrong. That's amazing. yes. Wonderful. Suresh sir, when we talk, so when I was talking to you, you said you would like to talk about self-empowerment. पहली जी. बात तो I would love for you to tell us what is self-empowerment and what all topics come under self-development, self-empowerment. Because here and there we keep on, talking about कोई limiting beliefs के बारे में बात कर रहा है, कोई confidence के बारे में बात कर रहा है. Self-empowerment is a very big topic. What all topics come under it is a big umbrella. So what all do you exactly teach? See, generally, I have designed my entire model in the four category. Okay. So first two categories primarily from within yourself, self, Okay. right? So out of these two, number one is cleaning your mental garbage.
Okay. सो व्हाट वी डू इज, जब हम कभी घर लेते हैं तो पहला काम क्या करते हैं, उसकी साफ सफाई करते हैं, एम आई राइट? Yes, absolutely. तो सेम वे हमारे माइंड में जो कचरा जमा हुआ है, लाइक लिमिटिंग बिलीफ, फियर एंड ऑल, ये सबको पहले ना फ्लश आउट करना बहुत जरूरी है. देन ओनली समथिंग गुड कैन कम इनसाइड, राइट? Hmm. सो मेरा पहला शुरुआत होता है कि लाइक इसके ऊपर मैं आपको अपडेट करना चाहूंगा कि आई हैव रिटन ए बुक, इट इज अंडर प्रोसेस नाउ. इट्स ओवर राइज अबाउट योर फियर, द नेम ऑफ द बुक इज. और ये बुक मैंने Okay. इसलिए लिखी है कि लाइक व्हेन आई इंटरेक्ट विद द पीपल, तो मेरे सामने सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर पता है क्या होता था? बिहाइंड एवरी प्रॉब्लम द मेन रीजन इज सम काइंड ऑफ फियर. Absolutely. सो So true. लाइक हाउ टू ओवरकम योर फियर. Secondly, how to solve your problem, how to break your limiting beliefs, how to get rid of the past shackles. Sometimes past hold us, and we are not able to move away. So after Hmm. cleaning, I'm sorry, Yes, I got that. after cleaning our mental garbage, then strengthening our root. Okay. Then first thing, like develop your mindset. The first thing, Okay. understand yourself. For that, I do the SWOT analysis and how to set your goal, how to be confident in all the aspect of your life, how to take ownership of your life, how to manage your time, everything related to self. Then Okay, comes that's nice. external, then come external development, how we project ourselves. So that Hmm. way, again, it has two part. External development means how you communicate in a different area, like how do you communicate when you give a presentation or public speaking, how do you communicate when you're going for a negotiation, how Hmm. you communicate when you're facing an interview, Wow. right? So all this communication aspect. Then the fourth one is the second part of external development is relationship building. After all, we all are human Hmm. beings, we are social animal. How to strengthen our relationships. Hmm. But that depends upon, see, my primarily I do the corporate training. And for corporate, I need to understand their exact requirements. So I ask a lot of question to them. And my question, they feel very surprised, sir. We have never thought in that way. So that way, I make my training very to the point, accurate, customized. Wow. ओके सो एक बार फिर से मैं समझ लेती हूँ. यू हैव 4 कैटेगरीज विद विच यू वर्क. लेवल 1 पे आप काम करते हो इन क्लियरिंग द मेंटल ब्लॉकेजेस, दैट इज द इनसाइड ऑफ अस वर्किंग. ठीक है. सेकेंड लेवल जो है, सेकेंड पार्ट ऑफ दिस कैटेगरी इज अगेन योर सेल्फ ओनली, बट द आउटर पार्ट ऑफ योर सेल्फ, इंक्लूडिंग strengthening the roots. That's what you said, right? Yes, strengthening the root. है ना. तो Like, ओनरशिप, hmm, माइंडसेट, स्वॉट एनालिसिस, relationships is what you work on. yes. Third category is corporate trainings. No, third category is in self empowerment is communication mastery, Okay. right? Okay, communication mastery and relationship building comes in third category. Fourth category, communication, third category. Fourth category is relationship building, in which like interpersonal relationship, how to have a parenting skills, and in corporate setting, how to deal the difficult people, how to enhance your Got it. team building, leadership skills. All this related to relationship. वाह, मतलब we have a full package with you now. Yes, So you do. whosoever is, in this live, I would love for you to, put in your questions in the chat box, because अब आपको पता है कि इनके पास कितनी सारी knowledge है. Now it's on you कि आप कैसे जल्दी जल्दी ask करते हो questions so that he can answer all the questions, right? So if you guys have any queries, I would love for you to put it in the chat box. Meanwhile, um, let me, start with this thing कि mental blockage आप कहते हो cleaning the mental blockage. How exactly do you do that? See, mental blockage means something happens with us, right? And we interpret everything in a certain way. Hmm. Sometimes that interpretation works for us, sometimes it doesn't work for us. Hmm. हम जनरली हमारा एक मेन ये चीज होता है कि लोग क्या कहेंगे. वी कीप Hmm. सीइंग द वैलिडेशन.
हमें किसी ने बोल दिया कि आई एम नॉट गुड लुकिंग, तो हम उस बात को टेक इट फॉर ग्रांटेड। तो True. हम अपने आप को ना मतलब कंपेयर करते हैं, और जब भी आप कभी भी किसी से कंपेयर करोगे ना अपना, तो आप बिलीव में 99.99% टाइम यू विल Hmm. फाइंड समथिंग रॉन्ग विद यू। क्या मैं सही कह रहा हूँ? यार उसके पास तो ये है, मेरे पास वो नहीं है। कंपैरिजन का डायरेक्शन ही हमेशा इनवर्ड होता है, और दैट इज नेगेटिव होता है। Hmm. राइट, तो मैं वही बोलता हूँ, कंपैरिजन क्यों कर रहे हो? व्हाई डोंट यू कंपेयर Normally, I योरसेल्फ? also, in my mentors' rooms, I've also always heard, and I've also trained multiple people, and I also tell them ki if you are comparing yourself with somebody else, understand that you might be on first step and they might be on the fourth step. There is no comparison in any case. नहीं, And कंपैरिजन once you start putting yourself into the zone of comparison, you are the only one who starts draining. You are the only one who starts feeling small. It's better not to do it. Just do your own work and watch towards your own growth. Oh, very beautifully said. But चलो आपसे आपसे जानते हैं what is your way of overcoming, ये जो हमारे को इनफैक्ट हर रोज का ही ये जो सोशल मीडिया पे एक्चुअली लोग पोस्ट करे जा रहे हैं, हम घूमने जा रहे हैं, मैं मलेशिया चला गया, मैं स्विट्जरलैंड चला गया, मैं ये चला गया, एंड पीपल, द नॉर्मल जनता, दे आर वाचिंग इट एंड दे आर फीलिंग दिस धक धक इन देयर हार्ट, दे आर फीलिंग सो स्मॉल अबाउट देमसेल्व्स, दे आर फीलिंग कि हाय हम तो कर नहीं पा रहे हैं. That feeling of envy, that feeling of jealousy, all comes because of comparing ourselves. How do you suggest your mentees how to overcome that? से फर्स्ट थिंग, स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर। अब आम का केले How से do we कंपैरिजन stop? नहीं हो मतलब सकता। ये तो नेचुरल सा ही हो जाता है ना, मतलब हाँ, कि नहीं, मेरे पास नहीं कंपेयर है. करना, लाइक हाउ व्हाट अप्रोच आई फॉलो इज, आई कंपेयर माई सेल्फ विद माई आइडल सेल्फ, Hmm. विद माई I गोल्स। like. ओके, ये मेरे गोल हैं, इस गोल के हिसाब से मैंने क्या क्या हासिल करना है। Hmm. हाउ डू आई वॉन्ट टू सी माई सेल्फ आफ्टर सम टाइम। Hmm. तो मेरा जो आइडल सेल्फ है, आइडल सेल्फ शुड नॉट बी वेरी हैक्टिक एंड इम्प्रैक्टिकल। Hmm. सी अपने आप Just को हमें few भगवान नहीं steps बना, about. हमें अपने आप को भगवान नहीं बनाना। हाँ. राइट, तो जैसे हम स्वॉट एनालिसिस करते हैं ना, तो उसमें मैं यही बताता हूँ, डोंट वर्क ऑन एवरी वीकनेस। Hmm. आप हर वीकनेस पे काम करोगे, लाइफ विल बी अटर इम्पॉसिबल। आप ये देखो, ऐसी कोई वीकनेस है जो आपके आगे आ रही है, आपको रुकावट पैदा कर रही है, विच इज ब्लॉकिंग यू, Hmm. वर्क ऑन दैट। Hmm. That's अब nice जैसे way. आप मान लो आप हर वीकनेस पे काम करो। आप फॉर एग्जांपल सचिन तेंदुलकर का एग्जांपल लीजिए। सचिन तेंदुलकर मतलब वेरी पुअर स्टूडेंट, 10वीं भी पास नहीं हो पाई उनसे। अगर उसके पापा उसके ट्यूशन लगा के उसको पढ़ाते हैं, तो वो क्या होता कि क्लर्क व्लर्क बन गया होता 12वीं पास करके, मुश्किल से वो Yeah. भी। लेकिन वो ही फोकस ऑन हिज स्ट्रेंथ। That's what I was going to ask you. Isn't it better that we start focusing on the strengths rather than going on to the यस यस, weaknesses? वेरी करेक्ट। फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ, देन उस स्ट्रेंथ के हिसाब से यू सेट सम काइंड ऑफ गोल। उस गोल में जो Hmm. वीकनेस है, गोल रुकावट है, वर्क ऑन दैट। फॉर एग्जाम्पल उसके. मुझे पैसे पहले लगता था कि मेरी इंग्लिश उतना अच्छी नहीं है, मुझे कई बार रिजेक्ट भी किया गया जस्ट बिकॉज माई इंग्लिश। तो अभी भी खैर बहुत अप टू द मार्क नहीं है, बट आई वर्कड ऑन दैट। Hmm. राइट, अब मैं हर वीकनेस पे तो काम नहीं कर सकता ना। वीकनेस तो मतलब यू आस्क पीपल व्हाट इज माय वीकनेस, दे विल राइट ए ग्रंथ ऑन अबाउट योर वीकनेस। सो डोंट गो बाय दैट। तो आपको ये हाँ, अगर देखना है सचिन तेंदुलकर को अगर उसकी बैटिंग अच्छी है, उसने बैटिंग पे ही फोकस किया, बैटिंग में कौन कौन से स्टाइल से वो बैट कर सकता है, इस पे कि फोकस एग्जैक्टली। किया, दैट मेक सेंस. इफ ही स्टार्ट्स गोइंग कि मेरे को तो बॉलिंग भी बेस्ट करनी है, मेरे को तो पिचिंग भी बेस्ट करनी है, मेरे को तो सब कुछ बेस्ट कर रहा है, देन ही वुड नॉट हैव बीन व्हाट ही इज राइट नाउ एंड हाउ वी नो हिम. यस, So, wow, wonderful. सो आपको ना अपना मेन Um, मेन कोई भी एक फोकस निकालिए, कोई भी एक स्ट्रेंथ निकालिए, एंड स्टार्ट पॉलिशिंग दैट। hmm. So while जैसे आप बात कर रहे हो, you work only on the self empowerment part of it, right? कि अंदर की internal development, outer development, communication, relationships, and you don't work on building careers, do you? No, no. Career building means like career counseling. I think what you're saying is career counseling is not my cup of tea. हाँ, आई कैन सजेस्ट। मेरे से लोग अक्सर पूछते हैं, सर मुझे कैरियर में क्या करना चाहिए। मैंने कहा वो मैं आपको नहीं बताऊंगा। आप ये सोचो कि मैं ये बनना चाहता हूँ, मेरे सामने क्या क्या रुकावट है, मैं उसको कैसे दूर करूँ। दैट वे आई कैन हेल्प यू। But isn't that true that जो हमारी ट्रू इंटरनल बिलीफ्स हैं, हमारी कुछ कोर वैल्यूज हैं, उसके हिसाब से
अगर हम कोई चॉइस ऑफ करियर करें, दैट वुड बी मच बेटर रादर देन जस्ट चूजिंग, मच हाँ बेटर नहीं वो होगा पापा ये बेटर। बनाए, आई लाइक इट, दैट इज अ ब्यूटीफुल थिंग, मेरे में टैलेंट है या नहीं है, मैं पीछे पड़ गई हूँ कि मेरे को वो बनना है। इज दैट नहीं अ नहीं, राइट वे ऑफ चूजिंग इट? नो इट्स नॉट अ राइट अप्रोच। आपने जो पहले बोला था ना वो इट्स नॉट बेटर अप्रोच, इट्स द बेस्ट अप्रोच। अब मैं जैसे हम्म। ट्रेनिंग में कैसे आया, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ईयर 2000 आई जस्ट रेड अ बुक, दैट बुक हैज चेंज माई लाइफ, एंड एंड व्हाट इज उसका दैट नाम बुक? है अनलिमिटेड पावर, रिटन बाय एंथनी रॉबिन्स। टोनी Oh रॉबिन्स my जिसे God, I आजकल बोलते हैं। bought that book few days back only, and I've been looking forward to read it. I host a, by the way, just for you, I host a book reading club wherein we have been reading beautiful books, and I'm thinking of bringing this on as well. But yes, now it is on my radar that हाँ ये पढ़नी है. That book has totally changed my life. After Hmm. reading that book, I restarted my education after a gap of 13 years because मैंने जैसे बताया कि मैं 12th के बाद ही मैंने एयरफोर्स ज्वाइन किया था। फिर ईयर 2000 में मैंने कहा यार नहीं, कम से कम ग्रेजुएशन तो करनी चाहिए। ये तो Hmm. एयरफोर्स में रह के हमने कुछ भी नहीं किया तो बेकार हो जाएगा। तो आई True. रीस्टार्टेड माई एजुकेशन, और वो एजुकेशन मैंने ग्रेजुएशन जो मैंने की ना उसमें मैंने दो बड़े बड़े डिफरेंट सब्जेक्ट थे। ये मैंने Hmm. सोचा था सीखने के लिए पढ़ना है, सिर्फ ये हेल्प बुक हाँ. लेके पास करने के लिए, डिग्री के लिए नहीं पढ़ना। तो देन आई टुक हाँ. सब्जेक्ट लाइक लॉजिक एंड साइकोलॉजी। Wow. Both आपको are मतलब beautiful जान subjects. का हैरानी होगी, लॉजिक भी एक सब्जेक्ट होता है और बहुत से लोगों को पता ही नहीं है इस बारे में। Hmm. तो मैं इन Wow. दो सब्जेक्टों से ना मेरी थिंकिंग, मेरा बिहेवियर, बहुत चीजें चेंज हो गई। एंड मेरे को लगता है साइकोलॉजी इज एक्चुअली लॉजिक। डू यू लॉजिक फील? में थोड़ा सा डिफरेंट है। साइकोलॉजी इज a साइंस ऑफ बिहेवियर, राइट, हाँ. एंड लॉजिक इज a साइंस ऑफ करेक्टनेस। साइंस ऑफ करेक्टनेस. Yes, whether this conclusion drawn from these premises is correct or not, that's all. Logic is not थिंग्स. reasoning। रीजनिंग नहीं है मैडम, रीजनिंग बहुत अलग चीज है। लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है इन सब चीजों में। वाओ. तो मैंने ओके, द लॉजिक बड़ा। रिजल्ट, द लॉजिक इज कि रिजल्ट ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा नहीं है. है। दैट एक्सप्लेनेशन दैट द माइंड गिव्स इज द लॉजिक. लॉजिक। वाओ. आई ऑल्सो लर्न समथिंग न्यू. अच्छा माय चलो सेल्फ प्लेजर। एम्पावरमेंट पे वापस आ जाते हैं. We जी। should not go away from the topic for the people who have joined in for knowing about self empowerment. सबसे ज्यादा आपकी लाइफ में, जैसे आपने इतने सारे लोगों को कोच किया, what is the biggest obstacle that people face? जितने भी सारे इतने सारे आपने टॉपिक्स मेरे को बताए हैं, सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल क्या दिखाई देने, क्या देखने में आता है देखिए that people सबसे, really need to work on? हाँ सबसे पहली चीज क्या है, पीपल डोंट एडमिट दैट दे हैव सम प्रॉब्लम। Hmm. सबसे बड़ा चीज है, अनलेस द ऐसे मेरे पास जो भी कोई काउंसलिंग के लिए आता हूं, पहले मैं ये बोलता हूँ कि आई हैव ओनली टू कंडीशन, दैट्स ऑल। नंबर वन, डू यू हैव सम प्रॉब्लम, डू यू एडमिट दिस? वो बोलेगा हाँ। देन सेकंड इज, आर यू रेडी टू टेक द एक्शन? मोस्ट ऑफ अस ना बिलीव कि मेरे, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, ये सामने वाले को ठीक करने की जरूरत है. हाँ, तो फिर तो बात ही खत्म होगी ना। अनलेस कोई एडमिट, मैं कभी ऐसे किसी की कभी काउंसलिंग नहीं करता, जिससे कोई मेरे को लोग बोलते हैं मेरे बच्चे की काउंसलिंग कर दे, आई डोंट डू दैट। मैंने कहा हम्म. उसकी नीड होगी तो आई विल डू दैट, उसको लगना चाहिए पहले। हम्म. ठीक है, वाओ, और मेरा, दैट्स अ गुड वे. हाँ ट्रेनिंग में ना मैं एक्चुअली दो ही चीजों पे फोकस करता हूँ। मेरा दो मेन होता है, चाहे वो ट्रेनिंग हो चाहे कोचिंग हो। नंबर वन, सेल्फ, कि बस आपकी लाइफ में ना यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन योर लाइफ। ट्रू. आपकी लाइफ में जब तक आप खुश नहीं हो, कोई खुश नहीं है। तो प्लीज अपने आप पे ध्यान देना शुरू करो। लेकिन हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे दो MIP हैं। हम पहला MIP, ज्यादातर लोग क्या समझते हैं, मोस्ट इग्नोर्ड पर्सन इन माई लाइफ इज मी, बट दैट इज अ वेरी रॉन्ग। बट यू नीड टू स्विच टू द अदर MIP, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन मोस्ट इन योर लाइफ इम्पोर्टेंट इज मी। पर्सन इन माय लाइफ इज मी. यस। वाओ, क्योंकि मैडम वंडरफुल जब तक आप वंडरफुल. खुश नहीं है, एक मैं आपको कैसे बताऊं, अगर आप जब तक खुश नहीं है, आप दूसरों को खुशी कैसे दे सकती हैं? Absolutely, I agree. And in my trainings as well, I normally tell people कि if your cup is not full of love, how is what is going to fall out of you is not going to be love at all. वही यस। होता है ना कि अब मेरे कप में कॉफी है and I am expecting the orange juice to spill out if the cup breaks. That's not going to happen. ट्रू। So we have to fill ourselves first, before we give out to the world. And I also believe कि if you are happy within,
that gives you a better drive and motivation to love everybody and make every relationship starts flourishing when you are flourished within. Yes. Wonderful. Second Oh, part is oh. which I give emphasis on is action, because any action is better than no action. अब जैसे इसके बारे में बहुत स्टडी हुई है ऑल ओवर द वर्ल्ड कि हमें लाइफ में ना दो ही रिग्रेट होते हैं. नंबर Hmm. वन, सम मिस्टेक वी डिड एंड लेटर ऑन रिग्रेटिंग कि मैंने ये क्यों किया. Hmm. सेकंड रिग्रेशन होता है समथिंग यू कुड हैव डन बट यू डिडंट डू, लेटर ऑन रिग्रेटिंग काश मैंने वो किया होता. काश मैंने किया होता. हाँ, और 90% लोग, और ये मैं क्वेश्चन हर बार अपनी ट्रेनिंग में पूछता हूँ और मुझे हमेशा एक ही आंसर मिलता है. 90% लोगों को अफसोस किस चीज का है? काश का. Hmm. तो मैं उनसे बोलता हूं कि देखो, डोंट ट्राई टू रिपेयर योर पास्ट, पास्ट इज डेड. लेकिन आज आप अपने आप से प्रण करो, Hmm. दिल पे हाथ रख के कसम खाओ, आज के बाद ये ना काश हमारी जिंदगी में नहीं आएगा. और पीपल हाँ, फील जो रियली करना है अभी ग्रेट. कर लो ना. हाँ, एंड ठीक है नाउ तो आपने. इट हैज बिकम बड़ी अच्छी फिलॉसफी भी स्टार्ट हो गई है, यू नो, 40s न्यू 20s एंड एज इज जस्ट अ नंबर. तो अब जब सब कुछ ये एक्सेप्टेंस आ गई है तो व्हाई नॉट स्टार्ट नाउ. जब भी यस, समझ में आए, जब भी याद आए, शुरू हो जाओ बॉस. क्योंकि मैडम व्हाट्स योर. क्या होता है ना, किसी भी काम को करने के लिए आज से अच्छा दिन और अभी से अच्छा मौका कोई नहीं है. गांधी जी तो बोल के गए थे, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुरी करेगा कब. हम्म. तो व्हाई नाउ वेट. इज द बेस्ट बिकॉज नाउ इज द ओनली टाइम यू हैव. Exactly. And on that note, Power of Now is a very good, powerful book as well to be read. आई रेड इट. It is a beautiful book. वापस आ जाते हैं सेल्फ एम्पावरमेंट पे. जी 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 जी, कोई बात. ये सारे टॉपिक ही ना इंटरकनेक्टेड है एक्चुअली. हम ना टॉपिक से बाहर नहीं जा रहे, तो कई बार Yes, थोड़ा सा डीप में जा absolutely. रहे हैं बट वो बाहर नहीं जा रहे. हम्म. एक और बहुत डीप फंडा है अबाउट हम्म. बिलीव्स. हम्म. एंड इट इज सेड, जब तक आप अपने आप को बिलीव नहीं करते हो, वॉट एवर यू बिलीव अबाउट योर सेल्फ इज योर रियलिटी, हम्म. राइट? How would you take this? How would you know, coach your mentees on this? से जनरली क्या होता है कि मैं इसमें ना पूरा साइकिल एक्सप्लेन करता हूँ. मैंने ही डिजाइन किया है. इसमें ना कम से कम 6-7 स्टेप है. 6-7 स्टेप कैसे कि एवरीथिंग स्टार्ट विद अ थॉट. Yes. ठीक है. एंड व्हेन यू कीप थिंकिंग अबाउट सर्टेन एस्पेक्ट यू स्टार्ट बिलीविंग इट. यू नो, थिंकिंग इज बिलीविंग. Yes. And if you keep believing, your belief will influence your attitude. Mm. ये बहुत डीप है. आप देखिएगा, आई एम श्योर व्यूअर को भी पता लगेगा. एंड आपके जब एटीट्यूड जो होते हैं ना, दैट इन्फ्लुएंस योर डिसीजंस. Yes. एंड डिसीजन इज द फादर ऑफ ऑल योर एक्शंस. Absolutely agree. राइट. एंड इफ यू टेक सर्टेन एक्शन इट विल डेवलप योर पोटेंशियल. Oh wow. Mm. एंड योर पोटेंशियल विल डिटरमाइन काइंड ऑफ रिजल्ट यू विल गेट. Nice. राइट. अगेन रिजल्ट के बाद बैक टू थिंकिंग. ये पूरी साइकिल है ये. तो ये मैं इसे बड़े अच्छे से मतलब एक्सप्लेन करता हूँ लोगों को. एंड पीपल से वाओ. अब बिलीफ में क्या होता है, इसमें ये टोनी रॉबिन्स बहुत अच्छे से इसे एक्सप्लेन करते हैं. ये अनलिमिटेड पावर में भी लिखा हुआ है कि बिलीफ को आपको कैसे चैलेंज करना है. हम क्या करते हैं, अपने बिलीफ को क्वेश्चन नहीं करते. फॉर हाँ, एग्जाम्पल questioning बिलीफ इज, होती. हाँ, बिलीफ इज लाइक ए टेबल टॉप. जैसे एक टेबल होता है, उसकी 4 टांगे होती है, राइट. उस पर ये टेबल टॉप है, ये 4 टांगे, राइट. तो अब Yes. टेबल के 2-3 टांगे टूट जाएंगी तो क्या होगा? टेबल गिर जाएगा, मिल जाएगा. हाँ. राइट. तो आपको क्या करना है कि बिलीफ कैसा होता है. टेबल टॉप इज द बिलीफ, लेग्स आर द रेफरेंस लेग. आपका जो भी बिलीफ है ना, उसके ऊपर कोई ना कोई रेफरेंस है. फॉर एग्जाम्पल, आपको ये लगता है कि आप एक बहुत इंटेलिजेंट लेडी है, आपका ये बिलीफ है. बट द क्वेश्चन इज, क्यों आपको ऐसा लगता है? तो आपके पास तो उसकी रेफरेंस होंगी. लाइक आपके एकेडमिक के लिए आप बहुत स्ट्रांग होंगी, आपने बहुत सारे कोर्सेज किए होंगे, आपने क्रिटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया होगा, आपने कंपटीशन जीता होगा, राइट. ये सब रेफरेंस है जिसके कारण है लो आपका बिलीव बना है कि आई एम इंटेलिजेंट. क्या मैं सही कह रहा हूं? क्या मैं सही कह रहा हूं? Yes, absolutely. हाँ. अब सेम रेफरेंस है ना नेगेटिव बिलीफ की भी होती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, कोई इंसान है, ये कहता है कि यार मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता. ठीक है. तो उसकी रेफरेंस क्या है कि उसने 1-2 बार कोई काम किया होगा, फेल हो गया होगा, या उसे दूसरे लोगों ने बोला होगा तो कुछ नहीं कर सकता.
उसकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब होगी, उसका कोई फिजिकल हैंडीकैप होगा, मतलब उसके पास कोई ना कोई रेफरेंस है जिसके कारण ये बिलीफ बना हुआ है। हम्म अब हमें क्या करना होता है, जो मैं करता हूं अपने काउंसलिंग सेशन में, कोचिंग सेशन में, या इवन ट्रेनिंग में भी, मैं लोगों के ना नेगेटिव बिलीफ की ना टांग तोड़ देता हूँ। हम्म अब जैसे एक स्टूडेंट मेरे पास आया दिल्ली के कॉलेज का, मेरा सेशन खत्म होने वाला था, पीछे पीछे आया मेरे, सर एक क्वेश्चन पूछना है। मैंने कहा पूछो। सर मैं डिसीजन नहीं ले पाता। मैंने कहा तुम झूठ बोल रहे हो। सर आपको क्या पता, मैं डिसीजन नहीं ले पाता, ये नहीं ले पाता, मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती है। देन आई सेड नो, आपको ये बात मुझसे पूछनी थी, आपने डिसाइड किया ना। एग्जैक्टली। कह रहे हाँ सर, आपने आज ये कपड़े पहने हैं, ये भी आपने डिसाइड किया ना। तो मैं क्या करता हूँ कि मतलब मैं जो भी, जैसे मेरे कोचिंग सेशन होते हैं, मैं लोगों के बिलीव देख के ना उसके जो रेफरेंस है उसको ब्रेक करता हूँ, और जैसे ही रेफरेंस ब्रेक करते हैं ना, इट्स लाइक वाओ, उनके एकदम बत्ती जलती है, एकदम बल्ब जलता है। ब्रेक थ्रू मूवमेंट आ जाता होगा बंदे के लाइफ में, हाँ, अब बस। जैसे मैं एक ही काउंसलिंग कर रहा था, वो बच्ची का बड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस था वो। तो उसका मतलब क्या था कि उसको ये था कि मतलब शी वॉज नॉट वेरी गुड इन स्टडी। 11th क्लास में थी और उसके साइंस टीम में थी, उसके 35% नंबर आ रहे थे। मदर वॉज वाइस प्रिंसिपल ऑफ ए रिनाउंड कॉलेज स्कूल इन दिल्ली। शी वॉज लॉट वरीड, समहाउ मुझे मिली वो। तो इवन साइकेट्रिस्ट को भी दिखा रहे थे उसको ना, लड़की को, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, एंड थिंग्स आर गोइंग बैक टू वर्स। सो सडनली मैं मिला उस बच्चे से, मैंने बात की, कहती है मुझे ना गुस्सा बहुत आता है। हम्म तो मैंने कहा ओके, ऑन ए स्केल ऑफ 1 to 10 कितना गुस्सा आता है आपको। कहती है 10। हम्म तो मैंने क्या किया, घर का फर्नीचर देखने लगा, उसकी मम का ऐसे हाथ पकड़ के ऐसे हाथ देखने लगा, उस लड़की का भी हाथ देखा, इधर उधर सब हम्म ढूंढने लगा। कहती क्या कर रहे हो आप। मैंने कहा आप कह रहे हैं आप बहुत बहुत गुस्सा आता है, गुस्से में आप क्या करती हैं। मम्मी को चक्कू मार देती हैं, अपने चक्कू मार देती हैं, दीवार पे सर पटक के मारती हैं, सामान तोड़ फोड़ देती हैं, तो क्या करती है। कह रही नहीं नहीं नहीं, मैं इतना कुछ नहीं करती। मैंने कहा तो फिर क्या कर दिया आप। एक बार मम्मी से आर्गुमेंट हो गया, एक बार खाना नहीं खाया, कमरे में जाके तो केवल मुंह दबा के सो गई, यही होता है ना। कह रही हाँ मोर और लेस यही होता है। मैं कहा तो नॉर्मल है ना, प्रॉब्लम क्या है। मैंने कहा आपको, आपने सोचा, गुस्से को ना लोगों ने बहुत नेगेटिवली प्रोजेक्ट किया है, बट बल्कि एंगर इज ए वेरी पावरफुल इमोशन। हम्म क्योंकि मान लीजिए अगर किसी को गुस्सा नहीं आएगा, ही विल बी मेड एज ए डोर मैट। मैंने उस बेटी से भी, बच्चे से भी यही बोला, उसकी मम्मी से ही बोला कि आपको गुस्सा नहीं आता, आप दो लेडी घर में बैठी है, मैं क्या क्या बदतमीजी नहीं कर सकता आपके साथ में। मैं आपके घर के सामान चुरा सकता हूँ, आपको बांध के चला जा सकता हूँ, आपको मार सकता हूँ, क्योंकि आपको तो गुस्सा आएगा ही नहीं आएगा। लेकिन हम्म अगर आपको गुस्सा आता है, गुस्सा ऑलवेज इज ए प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। अगर आपको अपनी डिग्निटी हम्म प्रोटेक्ट करने के लिए गुस्सा आ रहा है, तो प्रॉब्लम क्या है उसमें। हाँ, एंड दैट वाज, बहुत बार लोगों को प्रॉब्लम ये होती है कि द इमोशन दैट आई एम फीलिंग इज अ बैड इमोशन। नो नो एंड टू इमोशन बी इज बैड इमोशन। ऑनेस्ट, हाँ, इमोशन इज जस्ट एन इमोशन. हम्म It has nothing to do with bad hai ki good hai, because every emotion has something to teach us, something to tell us about what is happening. हम्म uh, nice. तो अच्छा, चलो, आपने एंगर की ही बात करी है, तो हाउ टू ब्रेक द एंगर. सो बहुत एक्सट्रीम भी लोगों को एंगर आता है. व्हाट वुड यू से अबाउट एंगर? लेट्स अंडरस्टैंड देखिए, दैट एज एंगर में जनरली फर्स्ट थिंग आप ये मान के चलिए, एंगर इज ए प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। उसमें कोई गलत हाँ, नहीं है, जैसे पहली हमारा चीज ब्रेन तो। है. हाँ। दूसरी चीज क्या है, एंगर जनरली क्यों होता है, दो तीन सिचुएशन होती है जब आपको एंगर आता है। नंबर वन, everyone has certain kind of values. When you find somebody is violating your value, you get angry. क्या मैं सही कह रहा हूँ। बिल्कुल. ठीक है। क्योंकि एंगर का और कोई रीजन हो ही नहीं सकता। आपको लगता है कहीं ना कहीं आपकी वैल्यूज या एथिक्स या प्रिंसिपल है वो कोई ब्रेक कर रहा है, या प्राइवेसी ब्रेक कर रहा है, तभी तो एंगर आएगा। नहीं तो आपको क्या लेना देना किससे। हाँ, या फिर मेरे प्लान के हिसाब से कोई सामने वाला नहीं चल रहा, तो वी गेट लाइक, हाँ, ओ अगेन देर अगेन ऑफ. आपकी वैल्यू हो गई ना कि उसको मेरे हिसाब से चलना चाहिए। यस. अब यहाँ पे आपको एक चीज समझनी बहुत जरूरी है। नंबर वन, फर्स्ट थिंग, ही मे नॉट नो अबाउट योर रूल्स। हम्म फॉर एग्जाम्पल मेरे घर का रूल है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मेरे घर का रूल है हर कोई जाएगा तो घर में चप्पल उतार के आएगा, नॉन वेज की कोई बात नहीं करेगा। अब मेरे घर में कोई फ्रेंड आ गया चप्पल पहन के आ गया, तो मैं उसे बोलूंगा ना प्लीज यार चप्पल बाहर लो, उसको पता ही नहीं मेरा रूल क्या है। लेकिन मैंने जेंटली उसे बताया, ओ आई एम सॉरी, वो चप्पल बाहर निकाल के आ गया, खत्म बात। फिर वो नॉन वेज की बात करने लगा, तो मैं कहूंगा यार देखो नॉन वेज मैं ना खाता ना मैं उसकी बात करता प्लीज। तो वो कहेगा ओ आई एम सॉरी। तो पीपल ऐसा नहीं है, लोग जानते बूझते करते हैं, उनको पता भी नहीं होता कई बार। तो हो हाँ, सकता है बहुत उसको सारे आपके लोगों रूल ना को, पता हो। एक्चुअली मैं बोलूंगी विमेन को, दे हैव अ हम्म प्रॉब्लम ऑफ थिंकिंग कि द सामने वाला पर्सन, स्पेशली देयर हस्बैंड, इज अ माइंड रीडर.
हाँ, मेरे को तो ये एक्सपेक्टेशन है, वो कम्युनिकेट नहीं करेगी एंड शी विल एक्सपेक्ट कि हाँ मेरे दिल में जो आ रहा है ना ये इसको समझ में आ जाए और ये मेरा वो काम कर दे. एंड आफ्टर थोड़ी देर के बाद व्हाट दे स्टार्ट डूइंग इज दे स्टार्ट गेटिंग एंग्री एंड दिस पुअर चैप डजंट इवन नो कि ये गुस्सा हो क्यों रही है. That is the यस, biggest problem I see, that if we do not communicate enough to you make others understand कि हमारी क्या expectations हैं in fact from them. हम्म, मेनली क्या होता है ना इससे, जैसे आपने मैन वुमेन का बताया, मैंने इसके बारे में ना बहुत स्टडी किया है. लाइक मैन और वुमेन, उनका ना डिफरेंट थिंकिंग पैटर्न होता है, इसके ऊपर बहुत स्टडी है. उनका सोचने का तरीका, बात करने का तरीका एकदम डिफरेंट होता है. अब भी Yes. आपको ये देख के मैं जैसे किसी लेडी से बात कर रहा हूँ तो मैं उससे वैसे बात नहीं कर सकता जैसे मैं मैन टू मैन बात करता हूँ, राइट. तो मुझे वो बेसिक कटसी दिखानी होगी. सेम वे लेडी का भी है कि ना, वो जो हम अंदाजा फिकेशन लगाते हैं ना, एस्टिमेशन लगा लेते हैं, ज्यूम कर लेते हैं, वो नहीं करना. Hmm. दे आर सी मैं ना, देखो एक जगह मैं एक शो देख रहा था, उसमें बड़ा अच्छा बताया था कि मैन आर हैबिचुअल प्रॉब्लम सॉल्वर. Hmm. प्रीमिटिव टाइम से वो जंगल में जाते थे, शिकार करके लेके आते थे, उसमें बहुत प्लानिंग करना पड़ता था ना कि कहाँ छुपना है, कहाँ से एनिमल आएगा, कैसे मारना है. तो वो बाय डिफॉल्ट है ना प्रॉब्लम सॉल्वर है. Hmm. अब वुमेन क्या आती है कि मैं बात करूं तो मेरी बात वो सुने. अब आदमी क्या करता है, इमीडिएटली सोल्यूशन बताया था. तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू होता है. तो आई वुड Wow. सजेस्ट कि हाँ, कि क्या है ना, जब मैं किसी मैन से बात करता हूँ, मैं मैन से बात करता हूँ. जब मैं वुमेन से बात करता हूँ, एक्चुअली हमें ना ये पिछले कुछ सालों में ना हमारे दिमाग में इतना कचरा भर दिया है कि मैन और वुमेन आर इक्वल. इतना Hmm. बकवास फंडा है ना, इन्हें सत्यानाश कर दिया. मेरे से एक मेरी ट्रेनिंग में एक लेडी ने बोला था मैन और वुमेन आर बराबर, मैन और वुमेन आर इक्वल. मैंने कहा नो, दे आर नॉट इक्वल. तो मैंने कहा मैडम, आप और दूसरी लेडी, क्या आप दोनों बराबर हैं? वंस टू लेडीज कैन नॉट बी इक्वल, हाउ कैन ए मैन एंड वुमेन कैन बी इक्वल? Hmm. तो दे आर एक्चुअली डिफरेंट. और हम है ना उस Absolutely, I डिफरेंस agree. को ना समझ पा रहे, ना रिस्पेक्ट कर पा रहे. Hmm. Yes, both had their own areas of dictatorship, I would say. Man was supposed to go out, hunt, and get food. And हम्म. women were supposed to be taking care and nurturing the family environment and doing everything. हम्म. All of a sudden, the concept started coming. Ki nahi, so people started having problem with मैं तो सिर्फ homemaker हूँ से, हम्म. wherein they did not realize that homemaker is doing equally good work नॉट इक्वली by मैडम. nurturing होम the मेकर का, family. होम मेकर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोफेशन ऑन ऑन अर्थ. आप नेक्स्ट Absolutely जनरेशन agree. को प्रिपेयर कर रहे हो मैडम. और देखो, मैं तो ये कोई लेडी मेरे से बात करती है, मैं यही बोलता हूँ कि आप औरत की ना माया को ही नहीं समझ पाए. अगर एक घर में एक आदमी बीमार है ना, तो वो एक आदमी बीमार है. अगर एक घर में औरत बीमार है ना, तो पूरा घर बीमार है. Absolutely agree. ठीक है. अगर एक घर में एक आदमी पढ़ा है ना, तो वो खुद ही पढ़ा लिखा है. लेकिन एक औरत पढ़ी लिखी है ना मैडम, पूरा खानदान का नस्ल चेंज कर देती है, पूरा घर पढ़ा लिखा हो जाता है. वही तो, the women did not understand the power of themselves only. That's why they started shouting and talking about हम हैं, हम हैं, हम हैं. And they started going out of the house to मैं भी काम करूंगी, मैं भी काम करूंगी. But they did not realize that the wisdom that they have in their womb, the wisdom that they have in their own feminism, femininity, I would say, was हम्म. immense. But they just, are ruining it. Anyway, I don't, yet having said that, I don't say that I don't want women to be working and all, but femininity in itself is a grace. It is यस, इट इज something that we should एब्सोल्युटली. not be embarrassed about. हम्म. Hmm. अच्छा चलो, ये भी बताओ कि मैंने अभी आपको बोला जैसे कि हस्बैंड भी कई बार घर आते हैं और हम्म. वो ना वाइफ से बोले, तुमने करा ही क्या, सारा दिन करती क्या हो. Right? गलत है. And because एब्सोल्युटली of रॉन्ग. that was the trigger point when women started saying मैं करती क्या हूँ, मैं तुझे दिखाती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ. नहीं, And they started वो भी going out गलत to है. work. नहीं, वो भी गलत है. सही, आप भाई बात, किसी को कोई हक नहीं होता ना किसी के काम को आप छोटा करके देखें. Hmm. वो तो वुमेन का काम का आपको जब पता लगता है जब वो बीमार हो जाती है. Hmm. ठीक है, तो वो भी तो गलत उस है. criticism को, according to you, how हम्म. should the women should have taken or should take the women, अभी भी सारी दुनिया तो working नहीं है, there are so many billions of women who are still homemakers. How हम्म. should they take this criticism, how should they approach to this? सिर्फ जनरली क्या होता है कि आग से आप आग कभी नहीं बुझा सकते.
ठीक है, अब अटैक को काउंटर अटैक में करोगे तो इट विल बी सुपर अटैक, तो वो फिर बैटल Absolutely. वॉर में बन जाएगा, तो वो तो एक नहीं है। Absolutely. ठीक है, तो पहली चीज क्या है कि आपको अप्रिसिएशन। हाँ, मैं तो आपने बोला कि मैं ज्यादा काम नहीं किया, लेकिन आपने बहुत अच्छा काम किया, थैंक यू सो मच, आपके कारण ही तो मैच कर रहे हैं। सी, मैन ऑल्सो नीड्स अप्रिसिएशन, मैन ऑल्सो नीड्स रिस्पेक्ट, राइट। फिर धीरे से आप हम्म। अपनी बात करो, राइट। इसमें एनएलपी में आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, तो मुझे पेसिंग। अच्छा नहीं लगता। आपने एनएलपी में कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, पेसिंग एंड लीडिंग। Yes. ठीक है, पेसिंग मीन्स पहले आप उसके जैसे बनो, लीडिंग मीन्स फिर आप उसको अपने जैसा बनाओ। Meet the person where they are and then lead them towards where they want to go, where you want to यस। take them. हम्म। Absolutely. हाँ, अब मेन क्या है ना, All right. जैसे लेडीज को भी चाहिए कि क्या होता है ना, उनका काम घर पे करते करते बहुत मोनोटोनस हो जाता है, तो उसमें कुछ स्पाइस ऐड नहीं कर पाती, वो मोनोटोनस हो जाएगा तो आप बिरयानी भी हर रोज नहीं खा पाओगे ना, या खीर भी रोज नहीं Mm. खा पाओगे ना, तो उनको भी थोड़ा सा ना कुछ अपने अप्रोच में, घर के माहौल में थोड़ा वो चेंज करते रहना चाहिए। लाइक डिश बनाने का पैटर्न हो गया, हस्बैंड से चॉइस पूछे कि भैया, बच्चों से पूछे तुम्हें क्या पसंद है। अब हस्बैंड ने, मैंने कई घरों में देखा, लिटरली मैंने देखा, आई टेल यू, कि हस्बैंड से पूछे कि मेरे सामने हुआ कि क्या सब्जी खाओगे, वो बोलेगा आलू गोभी बना ले, और वो बना के टिंडे लेके आएगी। तो फिर उसमें तो फिर आपको पूछना नहीं चाहिए था ना, जब आपको अपनी पसंद का ही बनाना था। तो ये कई बार ना, ये छोटी छोटी बातें रिलेशन खराब कर देती हैं। Hmm. Nice. क्या होता है, अभी मैं एक लॉ पढ़ रहा था, उसका नाम मैं भूल गया, कि जब आप पर्टिकुलर वे में काफी प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए रहते हैं ना, तो आपको ना, आप यू स्टार्ट टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड, क्योंकि जो चीज Absolutely. जितनी इजीली अवेलेबल होती है ना, उस चीज की कदर नहीं होती। तभी तो बीवी आलू गोभी नहीं लेके गई थी, टिंडे लेके गई थी कि तुम कदर हाँ। करो, तुम देखो तो सही तुम खा क्या रहे हो। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि हस्बैंड को भी मतलब, फैमिली को कोई ऐसा नहीं करना चाहिए कि मतलब अपनी वाइफ है तुम्हारी, घर छोड़ के आई हुई है, एंड शी इज टेकिंग लॉट ऑफ पेन, आपकी उम्मीद से कहीं ज्यादा वो पेन ले रही है। अब उसके किसी काम को आपने, कहते हैं ना, मुर्गे की जान निकल गई, खाने वाले को मजा नहीं आया, तो नेवर डू दैट। So true. So true. What are the, so you being such a, serene personality, that as I see you, इतना wisdom भरा हुआ है, what are the mantras that you abide by? See, I follow simplicity to my core, because complexity is the enemy of execution. तो जितना Hmm. आप सिंप्लिसिटी फॉलो करेंगे लाइफ में, आपको मतलब उतना ही ज्यादा आप एक्शन लेंगे। Hmm. लाइक, और मैं जनरली ये फोकस करता हूँ कि आपने क्या किया है, क्या नहीं किया, उस पर फोकस करेंगे तो डे बाय डे आपका डिक्लाइन होता जाएगा। अब जैसे मैं, Deterioration. आई वाज टेकिंग ए सेशन ऑन टाइम मैनेजमेंट इन कॉर्पोरेट, तो उसमें टाइम मैनेजमेंट में आता है टू डू लिस्ट। तो लोग Hmm. बोलते हैं सर, टू डू लिस्ट बनाते हैं, उतना हो नहीं पाता, मैं कितना काम कर लेते हो। कह रहे सर, 10 लिखे होते तो 7-8 तो कर ही लेते हैं। मैं कहता हूँ प्रॉब्लम क्या है, 7-8 तुमने किए, उस पर तुम्हारा ध्यान नहीं है, तुमने 2 नहीं हुए, उस पर तुम्हारा ध्यान क्यों है भाई। 100% आपका कभी नहीं हो पाएगा। मैं कहा, गाड़ी का स्पीडोमीटर 200 किलोमीटर तक होता है, लेकिन क्या आप 200 जाते तो नहीं किलोमीटर हो ना। चलाते हैं रोज। So I also believe that we should. So the last book that we read was Eat That Frog. So it suggested that rather than having a very long to-do list, focus on only the 20% of the things that actually bring shift in your life, rather than focusing on the things that are not that very important. You can work on delegating, eliminating some tasks as well, rather than doing everything on your own. What would you suggest on that? नहीं नहीं, एब्सोल्युटली ट्रू, यू कांट डू एवरीथिंग ना। अब जैसे अभी घर पे हमारी मेड है, शी डज अ लॉट ऑफ थिंग। अब बहुत सारी चीजें हैं, एप्स वगैरह, बिजली का बिल देने के लिए आई डोंट हैव टू गो टू द इलेक्ट्रिक ऑफिस, तो ऑनलाइन Yes. से हो जाता है। तो आई जस्ट डेली मैं अपने रजिस्टर में लिखता हूँ कि मैंने क्या, आज का मुझे क्या काम करना है। और Hmm. 100% मेरा आज तक नहीं हो पाया, ऑनेस्टली मैं बताऊं। वैसे मेरा हो जाता, दिस इज माई टू डू लिस्ट फॉर द एंटायर वीक, हाँ। and I make sure I am not sleeping before I am completing it. हाँ। Having said that, even if I do not complete something, I shift it to the next day. यस। यस। I normally, what I do is I have a full week's plan जिसमें सैटरडे एंड संडे सबसे कम काम रखती हूँ, रीजन बीइंग जो यहाँ से बच जाएगा सब सैटरडे संडे के ऊपर जाएगा, हम्म। so that towards the end of the week I feel accomplished and ऐसे लगे कि हाँ बहुत काम करा, बड़ा मजा आया. यस। तो मतलब क्या होता है ना, आपका शेड्यूल इतना हैक्टिक नहीं होना, इट शुड बी ह्यूमनली पॉसिबल।
एंड क्या Yes. आपने क्या किया है उस पर ध्यान दो, क्या नहीं किया ठीक है नेक्स्ट टाइम करेंगे ना, प्रॉब्लम क्या Yes. There is always another day. Today is not the last है। day ट्रू that we are living, right? ट्रू। एंड Wonderful. मेरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैं अपनी लाइफ में फॉलो करता हूँ ना, Hmm. वो है वर्कआउट। मैं अपनी ट्रेनिंग में भी बोलता हूँ प्लीज लुक आफ्टर योरसेल्फ। वर्कआउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक अच्छे शरीर में ही एक अच्छा माइंड रह सकता है। Hmm. अगर हम मोटे हैं तो हमारे अंदर नहीं रह सकता क्या? नहीं, मैंने क्या बोला कि अच्छा शरीर मीन्स डजंट हैव टू बी मोटा पतला, इट्स हेल्दी, फ्री फ्रॉम डिसीज, एक्शन ओरिएंटेड। मोटे लोग भी बहुत एक्शन लेते हैं, हाँ, मैं लेती राइट? तो नहीं, मैं वैसे पर्सनली मैं आई कांट कमेंट, आई हूँ। नेवर, आई Of डोंट course. कमेंट। बट हाँ, क्या होता है ना कि देखिए आप अपनी हमारी बॉडी को देखिए, हमारी हेल्थ क्या है ना, ऐसे चलती है ऊपर, फिर एक पीक आता है, मतलब 30 to 40 के बाद में फिर वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, राइट? अब जितनी प्रॉब्लम होती है 40 के बाद आती है, बीपी की, शुगर की, जो भी प्रॉब्लम आती है। अब Hmm. मेन अगर क्या है, अगर आपने वर्कआउट किया हुआ है ना, तो जो 30 से 40 वाली एज है ना, वो हो सकता है आपकी 50 के बाद भी ना आए। Hmm. फॉर एग्जाम्पल मैं अभी, आई एम 56 ईयर, मैं अभी तक कोई दवाई नहीं खाता। Wow. मेरे को बीपी शुगर कुछ नहीं, कोई मेरा पंगा नहीं है, ठीक है? क्योंकि मेरा रूटीन है, डजंट मैटर व्हाट हैपेंस, मैं 1 घंटा मुझे वर्कआउट करना ही करना है। Wow. अब वर्कआउट करने से पता है क्या, वर्कआउट के बेनिफिट देखिएगा। अगर आप सेल्फ इंप्रूव करना चाहते हैं ना, स्टार्ट विद द वर्कआउट। वाई? वर्कआउट से फायदा क्या होता है? नंबर वन, एनर्जी लेवल बढ़ता है आपका। नंबर टू, Hmm. शेप एंड बॉडी स्ट्रक्चर आपका बढ़ता है। नंबर तीन, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। नंबर चार, आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। जैसे मेरी फैमिली में Hmm. सार किसी को कोविड हुआ, मुझे नहीं हुआ, ठीक है? आप, Wonderful. हाँ, आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। नंबर फाइव, इट मेक यू डिसिप्लिन। जिसको Yes, भी डिसिप्लिन absolutely का agree. इश्यू है, प्लीज स्टार्ट वर्किंग आउट, क्योंकि आप डिसिप्लिन होंगे ना। आपने कभी नहीं देखा होगा किसी बॉडी बिल्डर को मोमोज वगैरह खाते हुए, Hmm. उसमें वो, I remember in 2022, 2020, I also started, this fitness journey for myself. And हम्म, I still remember, अगर मैं भटूरे छोले खाती थी ना, मतलब देखती थी, तो I used हम्म, to feel, यार, इतनी मेहनत करके I'm reducing. Why should I have it? No, I don't want it. No matter हाँ, what happens, I'm not going to have it. हाँ। तो ये आप सेल्फ डिसिप्लिन का जिसको भी इशू है ना, तो पता है आप वर्कआउट करना शुरू। वर्कआउट डजंट हैव टू बी, आई मीन यू शुड गो टू द फैंसी जिम और बहुत इक्विपमेंट ना, ना, सिंपल फ्री हैंड। फ्री हैंड इज द बेस्ट वे। आई डू द फ्री हैंड। मैं पहले वेट वगैरह करता था, देन आई स्टार्ट डूइंग द फ्री हैंड एक्सरसाइज। Hmm. अब देखो क्या होता है ना कि मुझे, आई एम 56, मुझे अभी किसी ओलंपिक में नहीं जाना, मुझे इतना लंबा चौड़ा मतलब बाइसेप वगैरह लेके कहीं नहीं जाना। मेरा गोल क्या है फिटनेस को लेके, कि मैं अगर ट्रेनिंग कर रहा हूँ, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग है ना, मतलब वो घंटों के हिसाब से नहीं होती, दिनों के हिसाब से होती है। अब जैसे बीएचई में मैंने 1 हफ्ते का लगातार ट्रेनिंग किया था, कंटिन्यूसली 6 डेज, Okay. सुबह 9 o'clock टू इवनिंग 5 to 6 o'clock। और Wow. ट्रेनर को ना, आप जानते हो कि ट्रेनर कभी बैठता नहीं है, ट्रेनर की Yes. कोई सीट नहीं होती। प्लस Yes. एनर्जी लेवल आपका कम नहीं होना चाहिए। तो मेरा गोल ये है कि मैं ट्रेनिंग में जाऊं तो मेरे को चक्कर नहीं आना चाहिए, हाँ, ये बात है. राइट? तो मैं उस हिसाब से मैं अपना वर्कआउट करता हूँ। तो मेन अपना फिटनेस गोल देखिए। प्लस और एक और, वर्कआउट से क्या फायदा है, इफ यू आर फूडी, इफ यू लव टू ईट, तब तो आपको वर्कआउट जरूर करना चाहिए, क्योंकि वर्कआउट नहीं करोगे शरीर बीमार हो जाएगा, सारी उम्र दलिया खिचड़ी खाने में निकल जाएगी आपकी। तो तब तब सारी उम्र दलिया खिचड़ी खाने से अच्छा है कि अभी से थोड़ा बैलेंस करके चलो ताकि आप 12 बैलेंस करो। सके. आपको आपको छोड़ना कुछ नहीं है कि मैं भटूरे, मैंने कोई चीज नहीं छोड़ी, मैं सब चीज खाता हूँ जो मेरे पसंद की है, बट हाँ, राशनिंग करके। हम्म. राशनिंग मतलब मुझे छोले भटूरे खाने का मान लो मेरा मन है, तो मैं ठीक है महीने में एक बार खाऊंगा, हम्म. राइट? तो उसमें आपको कोई छोड़, क्योंकि अगर आप छोड़ दोगे ना, टेम्पटेशन भड़कती रहेगी। आप सब चीज खाओ। मेन आपका ना, अगर आप किसी स्पोर्ट्स फील्ड में है या किसी शो बिजनेस में, लाइक मॉडलिंग वगैरह में, तब तो ठीक है, आपको एक स्ट्रिक्ट डाइट, स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि आपका लुक इज योर मेन यूएसपी, राइट? लेकिन अगर वैसा कोई नहीं है, यू जस्ट वांट टू बी फिजिकली फिट, तब तो उसमें कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं होता कि आपको ऐसा ही डाइट खाना है, वैसा ही डाइट खाना है। हाँ, थोड़ा सा मतलब रेगुलर करो अपनी डाइट को बस। हम्म. वर्कआउट इज अ प्राइम इंपॉर्टेंट। जिसको भी सेल्फ डेवलपमेंट का कोई भी इशू है, प्लीज स्टार्ट वर्किंग आउट। वंडरफुल. आई वुड से मैं भी सेल्फ डेवलपमेंट की जर्नी पे जब आई थी ना, हम्म, before that I was also working out every single day. I had lost around 18 kilos at that time. हम्म, And
I felt somewhere in my heart and in my soul, I believe कि वो जो workout की वजह से the kind of dopamine secretion होता है या जो भी होता है उसकी वजह से I got into अभी body is fit, body अच्छी हो गई है. Now I want to do something else. Now how do I work here? How do I improve this thing? The mindset. And then Hmm. I started working on that as well. Hmm. So I always, whenever I talk about my achievements, losing 18 kilos is always my first achievement because of that, I started gaining confidence in myself and I felt कि नहीं, I can learn more, I can do more in life. And I started Benchmark. doing, what I'm doing right now. ये क्या होता So है ना, yes, रेफरेंस पॉइंट होता है. I agree to the fact that when you work out, there is a lot of shift that happens in your body, in your soul, Hmm. which actually is, I would say, an awakening moment for maybe your soul to do something even better for your own sake. Hmm. क्योंकि Wow. फर्स्ट आपको ना फिजिकली रफ एंड टफ होना पड़ेगा. जब आप फिजिकली रफ एंड टफ होंगे ना, तभी मेंटली आप रफ एंड टफ होंगे. तभी आपके अंदर रिजिलियंस डेवलप होगा. राइट. Hmm, तभी आपके जो एक बिहेवियर स्किल्स है वो इंप्रूव होंगे. तभी आपका माइंडसेट इंप्रूव होगा. absolutely. Wow. We are almost 47 minutes here on on live. Hmm. There is so much more that we can keep on talking, and it is such an interesting and insightful, topic that it interests me, and I'm sure the audience would have also enjoyed it. Um, Thank you so much, sir. It was amazing connecting with you. I would love to bring you back someday again so that we श्योर. can continue this discussion because it's absolutely interesting and मुझे मन नहीं कर रहा है कि ये बंद हो live. It is interesting. It's absolutely interesting and I'm loving it. Um, I would love to, pay my deepest gratitude for accepting this request and being here on this platform with me. Thank you so much for joining. थैंक यू सो Thank मच. यू टू. थैंक यू. And for the ones who joined in the Insta Live, I would love to tell you, you guys are rock stars. Thank you for being here. Take good care of yourself and work on the things that Sir has, shared with us, discussed with us. And I'm sure you're ready to thrive. God bless you. Take care and see you next week. Bye.